अच्छा, we were Yes. doing this. Okay, we were doing this chapter, biological classification. So I gave you that who gave two kingdom system of classification, Linnaeus. The Carlos Linnaeus, he gave two kingdom system of classification in which two kingdoms were animal kingdom and plant kingdom, kingdom Animalia and Plantae. Then Aristotle gave, he was the first one. Aristotle was the first one who gave first system of classification. Aristotle ने दी थी सबसे पहली classification system. And Aristotle ने बताया था again, they were divided into two groups, plants and animals, plants into herbs, shrubs and trees. याद है आपको ये terms किसने दी थी? Yes, आपको Yes. लिखवाया हुआ है? Yes, first chapter में लिखवाया था आपको सभी को. I hope सभी ने ये continued part है, कोई किसी का miss नहीं हुआ last part. तो हमने ये टॉपिक किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था लीनियर्स के बारे में. ही गेव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया. बिफोर लीनियर्स इट वाज एरिस्टोटल who gave two kingdom system of classification, plantae and animalia. तो प्लांट्स में उसने बताया था ट्रीज, shrubs, herbs और herbs, shrubs और trees. और एनिमल्स में विदाउट ब्लड या विदाउट आरबीसीज या फिर विद आरबीसीज. Ma'am, even about three terms, annual, biennial and perennial. Yes, he gave three terms also. Yes, very good. फिर उसके बाद जो इसके बाद जो थर्ड साइन, सॉरी दिस वाज द थर्ड वन. फर्स्ट था एरिस्टोटल, सेकंड लीनियस, थर्ड अर्नस्ट हैकेल. अर्नेस्ट हैकेल बोलते हैं. He gave three kingdom system of classification. This is not given in NCERT. तो इसमें इसने एक ऐड कर दिया था प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा, they were unicellular organisms. And then Plantae and Animalia. This was three kingdom system of classification. Then Copeland. बच्चे आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री है ये. You need to write down this brief history. This is not given in NCERT. तो four kingdom system of classification. इसमें ऐड किया इन्होंने Monera, Protista, Fungi, Monera, Protista, Plantae and Animalia. पहले वाले में प्रोटिस्टा ऐड हुआ, अब मोनेरा भी ऐड हो गया अपार्ट फ्रॉम प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया. और जो यहाँ थे प्रोटिस्टा, मोनेरा, मोनेरा वर यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट, whereas protistans were unicellular but eukaryotes. Please write down, and when you are done just raise your hand. So if you are done, shall I move to the next part? Yes. Ma'am, please wait 1 minute. Okay, Kiran. Okay, bache. Kiran and Kashish, they are done. Okay. I'm waiting, bete. Is done? No, ma'am. Okay, okay.
Ma'am, in the fourth one, it is Monra, Protista, Algae, and what is the other No, one? no. It is Monra, Protista, Plantae and Animalia. Okay, ma'am. Same as earlier, बस सिर्फ Monra ऐड किया है. So I'm moving to next page now. Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay, बच्चे. अब इसी के बाद था R.H. Whitaker in the year 1969. He gave 5 kingdom system of classification. और वो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं R.H. Whitaker का 5 kingdom system of classification. और डिटेल में आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने डायग्रामेटिकली बताया था कि जो डिफरेंट डिविजन्स हैं, किंगडम्स हैं, जैसे सबसे पहली थी मोनेरा, देन प्रोटिस्टा. यस एनीवन? Fungi, यस, फंजाई. Animalia, and Plantae. Plantae and Animalia. यस, पहले प्लांटे फिर एनिमेलिया. बच्चे इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको. ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. मोनेरन्स वर प्रोकैरियोट्स. इसमें बैक्टीरियाज आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम. ये भी यूनिसेल्यूलर है. प्रोटिस्टेंट्स में यूनिसेल्यूलर हैं बट दे आर यूकैरियोट्स. फंजाई क्या है? सेप्रोफिटिक. प्लांटे क्या थे? ऑटोट्रोफिक. एनिमेलिया क्या है? हेटरोट्रोफिक. Heterotrophs. यस. ये तो हमने डिटेल में पढ़ा था. आज हम इसको एक एक किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे. बट इसके बाद अभी आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो इसके बाद एक और था, आपने लिखा था अभी तक 4 लिखे थे. दिस वाज द 5th वन. एक और इसके बाद साइंटिस्ट था वूज, कार्ल वूज बोलते हैं, WESC. ही गिव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. बट एक्सेप्टेबल कौन सी है? 5 किंगडम. R.H. Whitaker के बाद आई थी 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और इसने 6 किंगडम में क्या किया? ही डिवाइडेड मोनेरा into आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. इसने सिर्फ मोनेरा को डिवाइड कर दिया था आर्कियोबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में. फिर दूसरी थी प्रोटिस्टा, सेम वे, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. So this was 6 kingdom system of classification. I hope everyone is clear with this. Yes, ma'am. Okay. तो हमने सबसे पहले पढ़ा एरिस्टोटल का. He gave 2 kingdom system. और plants और animal, plants में भी herbs, shrubs और trees, animals में with RBCs और without RBCs. फिर Linnaeus 2 kingdom system classification, Plantae and Animalia. Ernst Haeckel 3 kingdom. ये आप नोट डाउन करोगे, कई बार यही क्वेश्चन आते हैं, किसने दिया 3 kingdom, किसने दिया 4 kingdom. He gave 3 kingdom system of classification, Protista, Plantae and Animalia. Copeland ने दिया 4 kingdom, Protista, Monera, Protista, Plantae and Animalia. और इसके बाद आपको बताया था R.H. Whitaker 5 kingdom system of classification, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. और लास्टली वूज ने दिया 6 kingdom system of classification, जिसमें मोनेरा को डिवाइड किया गया है आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में. नाउ व्हाट आर आर्कियोबैक्टीरियाज? दे आर कॉल्ड एज ओल्ड बैक्टीरियाज. एंशिएंट का आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, जो पुराने जमाने में होते थे. आर्कियोबैक्टीरिया
U bacteria, they are present day bacteria. They are true bacteria. Present day bacteria. Done, everyone? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन आता है, give the different criteria that was used by Whitaker in his system of classification. What were the different criteria that he used? So Whitaker's 5 kingdom system of classification में criteria he used were, आप लोगों को डायग्राम में बताया था मैंने, but now you will write down in paragraph form. उसने जो एक टेबुलर फॉर्म में इनफैक्ट सेल टाइप मतलब यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, न्यूक्लियस whether it is prokaryotic or eukaryotic, cell wall whether it is made up of cellulose और नॉन सेलुलोज, न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन. These are the criteria that were used by R.H. Whitaker in a system of classification. अब आप tabular form में लिखोगे इसको, Monera, Protista, Fungi, Animalia. अच्छा, आप पूरा नोट डाउन करोगे. ये M से इज Monera, P से इज Protista, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया. करेक्टर्स यहाँ आप नोट डाउन करोगे. करेक्टर्स में पहला करेक्टरिस्टिक फीचर है सेल. Moneran, they are made up of single cell. Protistan, single cell. Plantae, fungi or animalia, they are multicellular. Second character is nucleus. बहुत easy form में आपको लिखवाया ये. Nucleus में, in case of Monerans, it is absent. Protistans, it is present. Fungi present, Plantae present, Animalia present. Now coming to organelle. Organelle में, Monerans में, there is no organelle present. In case of Protista, fungi, Plantae, Animalia, they all have cell organelles like mitochondria, chloroplast. Next is cell wall. In case of Monerans, it is special and made up of peptidoglycan. In case of Protistans, peptidoglycan, peptidoglycan, peptidoglycan. Yes, ma'am. Okay. Cell wall, peptidoglycan. और फिर इसके बाद है जो प्रोटिस्टेंट्स हैं, they also have cell wall, but it is not made up of peptidoglycan. In case of fungi, it is made up of a special layer, chitin. Chitin कई बोलते हैं, it is chitin. In case of plant, it is cellulose. In case of animals, it is absent. Next is
अच्छा, ये सेल वॉल समझ आ गया. Made up of peptidoglycan. They have cell wall, they have chitin, cellulose, and it is absent in multicellular organisms, Animalia. Next feature is nutrition. In case of nutrition, इसमें तीनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं. ऑटो भी है, हेट्रो भी है और सेप्रो भी है. आप ऑटो और हेट्रो लिखोगे. In case of plant protistans, again it has both auto and hetero. In case of fungi, it is saprophytic. In case of plantae, it is autotrophic. In case of Animalia, it is heterotrophic. न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो पहले तो दूसरे में दोनों है ऑटो हेट्रो. फंजाई में सेप्रो, प्लांटे में ऑटो, एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक. So when you are done, just raise your hand. Okay. Yes, can I move to the next page now? Yes, ma'am. Okay. This part is easy, I guess. क्योंकि हम ये लास्ट क्लास में कर दिया था हमने, तो I guess this part is easy. Okay, now coming to the next part. अब आप लोगों को ये जो मैंने डायग्राम बताया था वो आप लोगों ने पहले कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द किंगडम. फर्स्ट किंगडम, बहुत ध्यान से देखना सभी. तो किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा. और आप लोग नोट डाउन भी करोगे साथ साथ. किंगडम मोनेरा is also known as kingdom of prokaryotes. Why it is known as kingdom of prokaryotes? But because इसके अंदर सारे prokaryotic हैं which do not have well defined nucleus. Prokaryotes वो होते हैं which do not have well defined nucleus. I hope ये सभी को पता है इस बारे में. The organisms which do not have well defined nucleus, they are called as prokaryotes. And this was the organisms. This kingdom includes the organisms which are as much as 3.5 million years old. So that is why this is also called as Archaebacteria. Why it is called as Archaebacteria? Because it has primitive organisms. Archaebacteria. Okay. Archae means ancient, Purana. So we'll study all the organisms which are included under Archaebacteria. पहले आप लिखोगे features. I have made it in very easy form. NCERT में थोड़ा सा मुश्किल है. In fact, help books में मुश्किल होगा. तो आप लोगों के लिए easy points दिए. तो अगर हम first point पढ़ें, तो the organisms are simple and they have prokaryotic cell. मतलब कोई organelle नहीं है. They are simple and they have prokaryotic cell. Second point, आपने table में देखा था, they may be autotrophic or they may be heterotrophic. Question आता है, give features of kingdom Monera. तो आपको
8 या 9 पॉइंट्स देने हैं प्लस एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप, मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। Why it is most widespread? Because you know bacteria they are present everywhere. हम बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया निकलते हैं मुंह से, ट्रांसफर होते हैं, तो बैक्टीरिया आर एवरीवेयर। बट सबसे छोटी किंगडम है, इसीलिए इट इज नॉट वेरी फेमस, इट इज वेरी लेस नोन किंगडम। सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था स्पेशल नाम peptidoglycan. I'll explain what is peptidoglycan. It may be present or it may be absent. Please write down these points, then I'll proceed. समझ आ रहा है? ये बहुत easy way में लिखवा दिया बेटे। बच्चे, if you are done, can I move to the next page? Okay. So सेल वॉल आपने पढ़ ली, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। मैंने आपको ये नाम दिया स्पेशल पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज द सेल नेम द सेल वॉल, स्पेशल सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इसी को एक और नाम देते हैं म्यूरामिक एसिड। इट्स अ शुगर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज म्यूरीन। तो कई किताबों में इसके 3 नाम दिए हुए हैं। It may be murine, it may be peptidoglycan, it may be, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पेप्टाइडोग्लाइकन, लास्ट स्लाइड में लिखा था पेप्टाइडोग्लाइकन। It may be muramic acid, it may be murine, okay? तो ये तीनों नाम है और ये वही चीज है म्यूसिलेजिनस। जब आप ओकरा, what is ओकरा? ओकरा क्या होता है? मैम लेडी फिंगर। तो जब हम ओकरा को कट करते हैं तो ओकरा से जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस निकलता है, जब आप भिंडी काटते हो तो जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस निकलता है, हाँ स्लाइमी सा सब्सटेंस निकलता है ना भिंडी काटने के बाद, वो है पेप्टाइडोग्लाइकन। वो ही मिरामिक एसिड है, सेम बैक्टीरियल वॉल में वो प्रेजेंट है। बैक्टीरियल सेल वॉल, दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल पार्ट व्हिच इज नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, लोकोमोशन। कहते हैं चलते हैं कि नहीं, तो लोकोमोशन में आप लिखोगे इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। और अगर प्रेजेंट है, it may move with the help of cilia. Cilia, they are small hair-like structure. Flagella. You know what is a flagella? Flagella is a long thread-like structure. अभी हम डिटेल में डायग्राम पढ़ेंगे इसका। और it may show streaming movement like amoeba. तो locomotion may be present or absent. अगर absent है तो चलेंगे नहीं, present है तो it may be with the help of cilia. Sorry, cilia is absent in this. Cilia absent है. It may be with the help of flagella or streaming movement. So ma'am, we don't have to write cilia. नहीं, cilia लिख के absent लिख दो बच्चे। Now coming to another part which is reproduction. अब reproduction कैसे होती है बैक्टीरियाज में? Sexual और asexual? Asexual. Asexual, very good. Binary fission. No sexual reproduction.
So I've given you few points. मैंने आपको बोला कि 7 to 8 points देने हैं प्लस एग्जांपल्स देनी है अगर आप इसके फीचर्स लिख रहे हो। और मेन फीचर्स में आपने लिखे हैं सेल वॉल, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन। प्लीज राइट इट डाउन, देन वील प्रोसीड। मैम फ्लैजेला इज प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट फ्लैजेला और साथ में जो है दूसरा स्ट्रीमिंग मूवमेंट, दे बोथ आर प्रेजेंट। डन बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now I'm moving to the next part, that is their classification. तो अगर हम पढ़ेंगे अब इसकी क्लासिफिकेशन, तो दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अभी हमने पढ़ा था आर्किबैक्टीरिया। आर्के मींस एंशिएंट बैक्टीरियाज व्हिच वर प्रिमिटिव, जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। और उसमें सबसे पहले आए थे आर्किबैक्टीरिया में। अब हम ऊपर हेडिंग लिखना क्लासिफिकेशन आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया अगर हम इनकी बात करें तो दे आर दी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये आज भी प्रेजेंट हैं। अगर आप आर्किबैक्टीरिया की एग्जांपल की बात करो तो ये रुमिनेंट्स के स्टमक में होते हैं, जैसे कैटल्स, काओ और कैटल्स, समझ रहे हो, गाय भैंसों के पेट में पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस, जिनके पेट में जाके सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं। तो these are called as methanogens which helps in digestion of cellulose। लेकिन ये बहुत पुराना, पहले भी ऐसे ही स्ट्रक्चर था, आज भी इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको सिर्फ नाम दिया आर्किबैक्टीरिया। और ये पहले भी ऐसे ही पाए जाते थे, आज भी वैसे के वैसे, दे हैव नॉट इवॉल्व्ड एट ऑल, इसलिए दे आर कॉल्ड एज आर्किबैक्टीरिया। और इसमें एग्जांपल दे दी मिथेनोजेंस। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आपको बताया था दे आर प्रेजेंट डे बैक्टीरिया और दे आर न्यू, दे आर इवॉल्व्ड। और इसमें एग्जांपल आती है ई कोलाई, जो हमारे पेट में होते हैं, दे आर गुड बैक्टीरियाज। ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, दिस इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे पेट में। फिर उसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया, CYANO बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम अगर आप देखो तो दे आर कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो नाम में इसके एल्गी है, बट इट इज नॉट अ एल्गी, इट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, मोनेरन्स। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट अ एल्गी, इट इज अ बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनो, आप सिर्फ नाम लिख रहे हो इनके, समझाने वाला पार्ट आई विल स्टार्ट। इसमें एग्जाम्पल आते हैं, अगर आपने कभी दवाई खाई है स्ट्रेप्सिल्स। स्ट्रेप्सिल्स क्या होते हैं? Ma'am, it is a medicine for like throat. ठीक है, स्ट्रेप्सिल्स आते हैं, वो कहते हैं स्ट्रेप्सिल्स खाओ तो अपने गले को साफ करो, जैसे विक्स खाते हो ना आप लोग, तो स्ट्रेप्सिल्स वैसी आती है। इट इज मेड अप बाय यूजिंग दिस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए गले में खराश इसलिए होती है, बैक्टीरिया आ गया। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए वी यूजिंग द बैक्टीरिया व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट बैक्टीरिया ओनली। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को इंटरेस्टिंगली दे आर कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। They are the organisms which do not have cell wall। और यही है जो smallest cell on earth, smallest cell। अगर उसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो। Jokers.
बच्चे अभी बताती हूँ आपको। वाइडिया नोन एज, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो अभी क्लियर होगा। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है तो कभी जैसे ये अपने 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 शेप चेंज कर देंगे, स्माइली बना देंगे, कभी सैड हो जाएंगे जैसे जोकर्स करते हैं ना, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। तो दैट इज व्हाई मिसनोमर वर्ड है। देखने में जोकर्स नहीं है बट वो हरकतें वैसी करते हैं। दैट इज दे कॉल्ड एज जोकर्स। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और क्यों स्मॉलेस्ट है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो बचा हुआ रह गया सेल मेम्ब्रेन, बहुत छोटा सेल है। उसमें एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया इज अ लंग्स इन्फेक्शन। ओके, इसी में और एग्जाम्पल लिख लो, रिकेटेसिया, स्पाइरोकीट। लिख लो, सिर्फ ये नाम लिखने हैं आपने। नीट में इंपॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी में दे आर नॉट गिवन। एग्जाम्पल है इसके अंदर लेप्टोस्पाइरा। Ma'am, in rickettsia, it is SCA. RICKETTESIA। Okay, ma'am. ओके, लेप्टोस्पाइरा स्पाइरोकीट में है। Chatte, स्पाइरोकीट, spirochetes. यस। Oh, S भी उतर गया यार. अच्छा, म्यूट योरसेल्फ सुखमन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लैमाइडे। इसी में एक एग्जांपल और लास्ट है ये क्लैमाइडे। क्लैमाइडिया, क्लैमाइडे एक ही बात है। क्लैमाइडिया, CHLAMIDIA। Ma'am, can you show the previous slide? ओके, Ma'am, in second one, which we have given the example. सेकेंड वन में है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ओके, E. coli is present in our stomach. Can I, बच्चे, can I explain now? Are you all done? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, अब ये देखो, इसमें आपने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया है। किंगडम मोनेरन्स वो हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक किंगडम। बहुत पुराने, 3.5 मिलियन years ago। तो बिल्कुल सबसे पहले पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, दे एग्जिस्टेड ऑन अर्थ 3.5 मिलियन years बैक। इसीलिए इनको बोला जाता है आर्के बैक्टीरिया। देखने में बहुत सिंपल है, प्रोकैरियोटिक हैं, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटो एंड हेट्रो। दे आर वाइडली स्प्रेड ऑर्गेनिज्म। अभी बताया बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, but they are lesser known because they are microscopic. Cell wall may be present or absent. They have a special cell wall which is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan का ही दूसरा नाम है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या म्यूरामिक एसिड, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या म्यूरीन। म्यूरामिक एसिड, म्यूरीन, पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूकोपॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। और आपको मैंने बता दिया ये सेम केमिकल है जो भिंडी में होता है, ओकरा में होता है। तो हमने सभी में सबसे पहला फीचर पढ़ना है इसका, सॉरी, सेल वॉल। सेल वॉल आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन एब्सेंट और प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो सिर्फ सीली, फ्लेजिला और स्ट्रीमिंग मूवमेंट। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मोड ओनली। आपको पता है बाइनरी फिशन।
फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले थे आर्कियोबैक्टीरिया, उसमें एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ी ई कोलाई। साइनोबैक्टीरिया जिसमें एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, दे आर आल्सो कॉल्ड एज यस blue green algae. Blue green algae या cyanobacteria, they were the first organisms which existed on earth. कहते हैं लाइफ में अर्थ पे सबसे पहले लाइफ आई, लेकिन किस फॉर्म में आई? इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन algae. फिर एक्टिनोमाइसिटीज, एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस. फिर माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा दे आर आल्सो कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और रीजन बता दिया है, माइकोप्लाज्मा ही स्मॉलेस्ट सेल है. सबसे important question, which is the smallest cell? It is mycoplasma. Can anyone tell me which is the biggest cell? Ma'am, Very good, very good. It is the ostrich egg. Who gave this answer? Okay, very good, Tanvi. बच्चे smallest cell तो बता दिया, आज आपने पढ़ लिया है. Smallest cell is mycoplasma. Largest cell is ostrich egg. शतुरमुर्ग होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में. उसका जो egg है, that is called as single cell, largest cell. Can anyone tell me which is largest cell in human body? Largest cell in human body. ma'am, I know about female, it is egg cell, right? Yes, yes, it is the egg cell. Yes, वो ये बेटे. गुरलीन बहुत ध्यान से सुनो बेटे. Smallest cell आपकी स्क्रीन पे है माइकोप्लाज्मा. Largest cell अभी बताया on earth, it is ostrich egg. ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम अब आपको याद करना है, तो वो है स्ट्रूथियो. बार बार रिपीट होगा तो आपको याद भी हो जाएगा, बस सिर्फ Ma'am, आज please सुन can लो. you write it once? Yes, I'll do that बेटे. स्ट्रूथियो. स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच साइंटिफिक नेम. तो अब आप लोगों को इजी तो आएगा नहीं, नीट में तो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं. स्ट्रूथियो. स्ट्रूथियो एग. दिस इज ऑस्ट्रिच. लार्जेस्ट सेल Ma'am, ऑस्ट्रिच this है. is the scientific name. यस, ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम है. और फिर क्वेश्चन आता है, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? देन इट इज एग ओवा, फीमेल एग. क्लासिफिकेशन आई गेस सबको समझ आ गई है. आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. या एंड सॉरी, तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. इनफैक्ट माइकोप्लाज्म इज आल्सो गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ. तो ये चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, बहुत इजी फॉर्म में. आर्कियोबैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया है, दे इंक्लूड मिथेनोजेंस, जो रूमिनेंट्स या कैटल्स के पेट में रहते हैं. दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज और प्रोड्यूस करते हैं. नाम से पता चल रहा है कौन सी गैस रिलीज करेंगे मिथेनोजेंस? मीथेन गैस, गोबर गैस, मीथेन गैस, बायोगैस. सीएनजी में यही होती है, सीएनजी सिलेंडर्स में. यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज हैं आपकी लाइफ में आप देखते हो, दे आर ऑल यू बैक्टीरियाज. दूध से दही बनता है, किसकी वजह से बनता है बच्चे? मिल्क इज कन्वर्टेड. Lactobacillus. यस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस. वेरी गुड, इट्स अ बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. क्या इसके बारे में फेमस बताया था मैंने आपको? ऐसा क्या है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में? Ma'am, this That is the ma'am, they are the first life first form, living. life form on Earth. Yes, yes. They were the first organisms which existed on the earth. Cyanobacteria या blue green algae. Actinomycetes में streptomyces बता दिया. Strepsils जो बनती हैं, streptomyces, they are very important. हम पढ़ेंगे strepto क्यों नाम दिया इसका. Next is mycoplasma. Mycoplasma में सबसे important चीज ये है, they are the smallest cell, smallest living cell on earth. Mycoplasma. क्यों smallest है इसमें? ऐसा क्या है? It does not have a cell wall. अगर आप क्लास में अटेंटिव हो, बिलीव मी, बहुत इजी है सब कुछ पढ़ना. एंड नीट के जब क्वेश्चंस करोगे तब भी आप याद रखोगे. नोट्स को अपने साथ रखना. यही आई to make this, compile these notes, so don't worry, you will not miss anything. Must be attentive in the class. अब आर्कियोबैक्टीरिया में आज हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. नहीं, they have two scientific name. बच्चे स्ट्रूथियो तो मैंने जीनस ही बताया. They have two scientific name. Okay.
there are there are different types of bacteria on the basis of their shape. Different types of bacteria. I'll make you write down. आप पहले सुनोगे फिर उसके बाद note down करोगे. There are different types of bacteria on the basis of their shape. तो types of bacteria on the basis of shape आप सिर्फ सुनोगे फिर उसके बाद note down करना. Types of bacteria on the basis of shape. Shape में सबसे पहली shape आती है circle. Circle को बोलते हैं coccus. Coccus form. अगर दो कोकस हो गए तो क्या हो जाएगा? डिप्लोकोकस. बहुत सारे चेन में आ गए, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. टर्म्स हैं. स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, डिप्लो का मतलब होता है टू. कोकस है, स्ट्रेप्टो बन गए. दो थे, डिप्लो बन गए. बहुत सारे हैं इकट्ठे बंच में, बंच को बोलते हैं स्टैफिलो. स्टैफिलो मीन्स बंच. तो ये तो आ गए सर्कुलर शेप. इसी तरह आते हैं rod shape, which is known as bacillus. Bacillus is what? Rod shaped. तो अगर दो हो जाएंगे डिप्लोबैसिलस, चेन हो जाएगी स्ट्रेप्टोबैसिलस, बंच हो जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्टेफिलोबैसिलस. फिर इसमें स्पेशल तरह के आते हैं जिसमें कॉमा शेप्ड. कॉमा होता है ना, कॉमा डालते हो. कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा शेप्ड है, उसको नाम देते हैं विब्रियो. क्वेश्चन आता है कॉमा शेप बैक्टीरिया कौन से है? बताओ बताओ बच्चों. हाँ, विब्रियो. 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 हाँ, विब्रियो. सब अपना म्यूट अनम्यूट नहीं करना, म्यूट करके आप वहीं पे अपने घर पे बैठ के बोलो विब्रियो. दैट इज द कॉमा शेप. फिर एक और लास्ट आता है स्पाइरलम. इज स्पाइरल शेप्ड. So these are the different types of bacteria on the basis of their shape. I don't think they are difficult. So please write down classification of bacteria based on their shape. Please be quick in writing down classification of bacteria on the basis of their shape. Ma'am, may you please spell seventh one? Spirillum. 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 Okay, ma'am. Okay, I've asked you to write down classify bacteria on the basis of their shape. On the basis of their shape. तो इसमें सबसे पहले लिखो कोकस फॉर्म. Last one is it spiralum or spinalum? Spirillum. R-I. Spirillum. Okay. Now please write down सबसे पहले हेडिंग लिखो कोकस फॉर्म. They are tiny spherical bodies. They are tiny spherical bodies. And are called as micrococcus. And are called as micrococcus. They may occur singly
or in pair. Pair में लिखोगे Diplococcus. They may occur singly or may occur in pair. They may occur singly or may occur in pair. Pair में लिखोगे Diplococcus or in chain. Or may occur in chain. चेन में क्या लिखोगे डैश डाल के? स्ट्रेप्टोकोकस. And in cluster, Staphylococcus. And in cluster, Staphylococcus. Example लिख लो इसमें, Diplococcus causes pneumonia. Diplococcus causes pneumonia. Diplococcus causes pneumonia. Ma'am, so mycoplasm is Diplococcus. No. अच्छा ये तो हम पढ़ी कुछ और रहे हैं. अगर आप देखो, don't get confused. ये देखो, ये हम पढ़ रहे हैं different types of bacteria. Mycoplasma, they are different from bacteria because they do not have cell wall. Oh, Okay. हाँ. yes. Okay. तो आपने लिखा Diplococcus causes pneumonia. Now second form is Bacillus. Ma'am, can you just repeat it once? Which one बेटे? Ma'am, this one only. Diplococcus Focus causes form. हाँ Diplococcus की spelling Ma'am, लिखे from हुए the हैं. starting. Okay, they are minute, they are tiny bodies, spherical bodies, and are called as micrococcus. They may occur singly or in pair, Diplococcus, or in chain, Streptococcus, and in cluster, Staphylococcus. और फिर एग्जाम्पल लिखवाई है मैंने Diplococcus pneumoniae. निमोनिया की स्पेलिंग है PNEUMONIA. PNEUMONIA, निमोनिया. नेक्स्ट लिखोगे Bacillus. Bacillus में लिखो, they are rod like. They are usually rod-like, maybe with or without flagella. Ma'am, rod-like? Maybe with or without flagella. Flagella क्या होता है? Thread-like structure. तो इसमें या तो thread हो भी सकता है, ऐसे thread-like structure, दोनों तरफ भी हो सकता है, single तरफ भी हो सकता है, और maybe absent also. Maybe with or without flagella.
अभी I have not made any flagella with this. Third लिखोगे vibrio. They are small, comma shaped. और इसमें होता है टेल पे फ्लैजिला, ये देखो नीचे पीछे टेल पे. They are small, comma shaped, COMA, comma shaped, with flagella at one end. With flagella at one end. और एग्जाम्पल लिख लो इसमें, विब्रियो कॉलरा. कॉलरा होता है खैजा. विब्रियो कॉलरा, CHOLERA, कॉलरा. विब्रियो कॉलरा. Ma'am, Vibrio cholera is a combined name. यस यस, विब्रियो कॉलरा ये बच्चे दो नाम होंगे, एक जीनस एक स्पीशीज. Yes, ma'am. विब्रियो कॉलरा. और लास्ट में लिखो स्पाइरलम. फोर्थ पार्ट है स्पाइरलम. They have spiral shaped. They are spiral shaped structure. Spiral shape बनाए ना, spiral shape. And may or may not have flagella. देखो इसमें भी ऐसे thread like. Flagella का क्या function था? What is the function of locomotion? शाबाश. तो ये आपने लिखा ही था locomotion के बारे में. ये देखो locomotion. तो स्पाइरलम में लिख लो. They are twisted spiral like, which may or may not have flagella. I guess सबको समझ आ गया है जो जो आपने लिखा है. It is not that tough. Yes, है ना? ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Okay. Now I'm moving to next part. Bacterias on the basis of flagella. अभी आपने पढ़ा they may or may not, बार बार मैंने आपको लिखवाया they may or may not have flagella. If they have flagella, they are called, they are divided in two parts on the basis of flagella. आपने लिखा पहले on the basis of shape. ये जो चारों forms लिखी हैं on the basis of shape. अब आप लिख रहे हो on the basis of flagella. तो they may have flagella, उसको आप बोलोगे trichus. Flagella absent, A means absent. अब कभी भी आप बायो में पढ़ोगे A किसी भी नाम के आगे, that means it is absent. और क्या absent है? Flagella. एक में flagella present, एक में flagella absent. और जहां flagella present है, again they are of different types. Flagella single, monotrichous. They may have flagella on both the ends, amphitrichous. They may have flagella in the form of bunch at one end, cephalotrichous. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Next, they may have flagella at both the ends, bunch of flagella at both the ends. It is called as Excuse me, lopho. ma'am. Yes. Ma'am, actually, I have got disconnected from the class. So can you just repeat what you have told? Yes, बच्चे bacteria on the basis of flagella. अभी तक आपने पढ़ा था on the basis of shape. तो अब हम पढ़ रहे हैं on the basis of flagella. Flagella means जो locomotion में help कर रहा है. तो flagella हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. When it is present, यहाँ लिखा हुआ है present, plus VE का मतलब है present.
When flagella present, it can be of different types. Single flagella, monotrichous. One flagella at both the ends, amphitrichous. Tuft of flagella. Tuft means group. At one end, cephalotrichous. Tuft at both the ends, lophotrichous. और इसी में got it, आदित्य? Yes, ma'am. Okay. फिर इसी में flagella is present all over the surface. It is called as peritrichous. So they are of different types on the basis of flagella, if it is present. It may be mono, it may be amphi, it may be cephalo, it may be lopho, or it may be peri. Got it, everyone? Ma'am, please wait. Okay, take your time, bete. When you are done, just raise your hand. Ma'am, the fifth one is penetricose. Peri, P-E-R-I, peri. And ma'am, it has flagella on around like all sides, on all sides. Yes, all over the surface. Okay. Okay, can I move to the next page now, everybody? Yes, Yes. ma'am. Okay. इसमें एक important topic है, again that is not given in your NCERT, but we'll discuss. तो bacteria on the basis of their stain, जब इनको stain करते हैं तो उसमें they are of different types. But right now I'm going to discuss this topic on the basis of mode of nutrition. Bacteria ने दोनों mode show किए थे. तो write down types of bacteria on the basis of mode of nutrition. It may be auto and hetero. पढ़ा था आप लोगों ने? It shows both chart जहाँ yes जहाँ आपने चार्ट बनाया है उसका टेबुलर फॉर्म बनाया है इसका क्लासिफिकेशन का, वहां आप लिखा था कि जो मोनरन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, दे विल शो बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे ऑटो में, अगर आपको पता हो फोटो ऑटोट्रॉप्स, बट देयर आर फ्यू बैक्टीरिया व्हिच लिव डीप इनसाइड द ओशन. समुद्र में बहुत गहरे समुद्र में रहते हैं, तो हाउ डू दे सर्वाइव? They cannot perform this photosynthesis, so they are dependent on chemicals for the formation of food, and they are called as chemoautotrophs. Ma'am, can you please explain about photoautotrophs? Photoautotrophs are the ones which make their food in the presence of sunlight. ठीक है, ये pigments होंगे इनके अंदर. Obviously they are not green in color. इनके अंदर बैक्टीरिया का अपना क्लोरोफिल है, बोलते हैं बैक्टीरियो
इनका अपना क्लोरोफिल है, इसलिए नाम दे दिया बैक्टीरियो क्लोरोफिल. बैक्टीरियो विरिडिन, इनका अपना क्लोरोफिल पिगमेंट है. And obviously they'll not evolve oxygen, they are anoxygenic. Anoxygenic means they will not produce oxygen. Photoautotrophs, they have their special pigment, bacteriochlorophyll, bacterioviridin. They are anoxygenic because they will not release oxygen. Chemotrophs में आपने सुना होगा एग्जाम्पल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? विच फिक्सेस? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. हाँ, इसके अंदर ना राइजोबियम नहीं आएगा. राइजोबियम है सेप्रोफिटिक, वो हम आगे पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक में. दे आर नाइट्रोसोमनस एंड नाइट्रोकोकस. नेक्स्ट क्लास में हम फिर से रिपीट करेंगे, तब आपको समझ आएगा. अंडरलाइन एज दीज आर साइंटिफिक नेम. ऑटोट्रॉफिक आपने आज कंप्लीट किया है. दे मे बी फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो सनलाइट में खाना बनाएंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो वर्डिन से. कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल से खाना बनाएंगे, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. I hope everybody is clear till here. Bacteria हमने Monera स्टार्ट किया है. Yes, say yes or no. Yes, ma'am, it's clear. Okay, that's nice to hear. We'll discuss this everything whatever we have done till now. I'll discuss this in the next class as well. And if you have any doubt, just let me know. But please make your notes, बच्चे, क्योंकि I have compiled the notes from different books. And आपको कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं है apart from your NCERT. Even I'll share MCQs from these chapters. So there's no need to buy any book if you are forming your notes. Okay. So take care, everyone. Stay safe. Now you can leave the class. Thank you. Thank you, ma'am. Have a good day. Okay. Thank you, bache. Take care, everyone. Bye bye. Bye, ma'am.